Hello, can you hear now? Hello, can you hear me? Reply on any meeting only, please. Don't now type anything in the other software Skype. Okay, the objective over here is to identify the trends and trade in futures. Are you able to see the screen? You can type yes or no. Are you able to see the screen? Okay. So objective is to identify the trends. As we are saying, we would like to trade in stocks which are in uptrend, and we would like to trade stocks which are in downtrend for short and long respectively. So how do you get to know what is an uptrend stocks? So we need to have these four parameters in mind. Trend. Trend can be something that is up or down or sideways trend. Uptrend means market is moving higher with high top, higher bottom formation. Market does not go with vertically up or vertically down. It will go 2 days up, 1 day down, 3 days up, 2 days down, and it will go up if it has to go up. So that is an uptrend which says that higher top, higher bottom. Every high, every peak, not high, every peak is greater than its earlier peak. Suppose the price has moved from 10 rupees to around 20 rupees and then fallen to 15 rupees. So peak is 20 rupees and bottom is 10 rupees, and then after that it goes to 25 rupees. So the higher bottom is 15 rupees. So bottom is 10 rupees, higher bottom is 15 rupees, lower top is 20 rupees, next high makes 25, then falls down to 22 and moves to 30. 25 is a higher top, 20 earlier peak. So 20 and 25 are peaks. So higher top, higher bottom formation. So trend can be identified by various ways by using higher top, higher bottom formation or lower top, lower bottom formation. In the falling market, it will be a lower top, lower bottom formation. Higher top, higher bottom formation is like a steps in the building. When you are going and up the staircase, then we step up, one step up, another step up. So it is a step way it goes up and a step way it goes down. So that is called as a going up is called a higher top, higher bottom formation. Going down is called lower top, lower bottom formation. Important things to be known during this session is open interest and volume. What is the scenario of open interest? What is a volume scenario? Open interest is required to know whether there is a buying pressure, selling pressure along with volume in the direction of the trend. Open interest alone cannot do anything. It has to be known with the trend. Now strength is something also we need to understand, and that I will be explaining in due course of time. Strength is something which will know whether there is a power to move up or down. So if the trend is up, it should have a strength, not only against the Nifty but against the benchmark of overall 120 stock or 200 stocks futures which are there. So among that, does it have totality power to move up, which is the best one among them? So that we need to know from the strength. That I will also explain in due course of time. And then comes the levels which are in uptrend and downtrend. Okay, which are the stocks which are in uptrend, and then once identified for buying or selling, then what are the levels I am going to buy and what are the levels I am going to sell. So then these are the four things required to be understood. So what is a trend? Trend is basically from an analysis perspective, as you can understand right now. For understanding purpose, you can listen it. It is that you don't have to do any analysis, but from understand there is subjective analysis and when there is objective analysis. Subjective analysis, you might have seen many analysts coming and saying like there is an uptrend, downtrend. One guy says that okay, there is market is into correction. Some other guy says that market is in long-term uptrend, but market is falling. But still he will say that the market is in uptrend. So trend up and down will change from person to person based on various that analyst is having. So accordingly he will trend and downtrend. So the subjective analysis like higher top, higher bottom formation, support, resistance. Some person will say support is this. Some person will say support is another one. So every person as an analyst, he having his own mindset.
He is having the way of looking at things to the market on his own, of his own. But somebody who is listening, analyst, is having another different set of mind. So he is, whatever he is saying, is interpreting as per his own convenience and trying to understand, and then things don't work as per it, then he will say they come and talk anything. So by doing this exercise, at the end of 3 hours non-stop right now, or 2.5 hours, you will try to know independently on your own what is an uptrend and downtrend and how you go about doing things for your own self. So you don't have to depend on others on a day-to-day basis what is to be looked. You become independent to decide whether it is an uptrend or downtrend, what I should do, whether I should cover my short positions, I should cover my long positions. Today's session, which will be about 2.5 hours or 3 hours, depends, will give you a complete orientation, and subsequently we will have 2 or 3 sessions or 2 sessions further during the course of 1 month, where we will then talk about on the strategies. Today also we will be talking about strategies at the end of this explanation, what strategies you should do by using our Excel sheet. Okay, so the Excel sheet answers all answers to your questions. Whether you are short, long, whether you have taken positions on your own, and then you want to analyze whether what should I do, everything is answered by this Excel sheet. Provided you are willing to follow, provided you are willing to implement and follow the stop loss what is mentioned. If you are not willing to follow and be determined on your own positions, whatever you are taking, then no solution can be provided. So our scope of this discussion will be there, try to identify the trend. So trend can be subjective analysis and objective analysis. Our focus in this session is completely on the objective analysis. We are not going to be dependent on any subjective analysis because that will change with every person, every mindset, every person. So we want a non-biased uptrend or downtrend, and your thought process as a trader should get aligned to the objective analysis. If the trend is shown in the objective analysis down and you are still standing in an uptrend in a fear that okay मेरा stop loss हो जाएगा और अभी down जा रहा है तो मैं वेट करता हूँ कल आएगा प्राइस, वो नहीं चलेगा. अगर ट्रेंड आज डाउन हुआ है और उसमें आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस लेके जाना जरूरी है. इट इज नॉट दैट योर पोजीशन इज अबाउट 5900 एंड यू सी मार्केट फॉलिंग डाउन टू 5400 and still you are holding. This should not happen. Then you should be with the market price. Day-to-day fluctuations will happen. Intraday fluctuation will happen. Your decisions are not going to be based completely on intraday fluctuation. Your decisions are going to be based on a view. What will happen in future, nobody knows. All are trying to play a probability game on this market. Whether whoever in this world on the market, they are all trying to take a probability game and trying to give you a logic why you want to buy and why you want to hold. By doing this Excel sheet, which I am going to explain in due course of time, you will become independent in handling your own things and with some assistance from me in this process. So let's see what is the trend. Concept of absolutely essential to the technical approach or to the market analysis. You actually in this Excel sheet, you don't need to do any technical analysis. Everything is converted of technical analysis into an Excel sheet. So when you are watching the Excel sheet, you are indirectly doing technical analysis, but you are not interested in doing the analysis, but you are just with the help of the Excel sheet sorters. I will explain you in due course of time at the end of the session. You will become independent. All tools used by chartists, technical analysis, support, resistance. Everybody talks about different things, moving average, trend line, etc. But all the purpose is to identify trend. Trend is most important, whether it is a trade, especially when you are trading in future. I cannot take a medium term picture 4 महीना down the line क्या लगता है market and take a position, because 4 महीना down the line market might fall by 500 points or 1000 points, but in first month market will move up by 500 points. When your market moves up by 500 points, then you panic because you will say, "Arey," then you will keep holding, and market extends by another 200 points, you keep holding, and then you panic and then cut position, and maybe after that market falls by 1000 points. So that doesn't have any meaning, because as a trader, you have to be like a mirror of the market. You cannot be against the market at any point of time. If you are up and you are making profit, then try to hold your position as much as possible. Take profits whenever required, but try to hold as much as possible in an uptrend, and if the position is in your favor.
So don't try to have positions. That is the first important thing. Don't try to have position against the market, because market might fall vertically for 1 month and your prices are at 6,000 and the market will never come to 6,000. It will go to 5,400. It will come back to 5,800 and come back down to again 5,400. But 6,000 is not coming. So there is no point and there is no solution like averaging your position, because averaging a position will increases the volume and still increases the risk. So you have to have a very symmetrical volumes. आपका वॉल्यूम हमेशा सेम होना चाहिए. अगर आपको 2 लॉट में कंफर्ट है तो कई करो, 10 लॉट मत करना, बिकॉज मोमेंट यू आर डूइंग 10 लॉट योर रिस्क इज नॉट कंफर्टेबल and you even can't watch 1 point down or 550 points down at the market. Every time you will panic. अरे 50 पॉइंट नीचे गया, मेरा 10 लॉट खड़ा है, अभी मैं क्या करूं? There is no solution for that mindset, that psychology. अगर किसी का ऐसा साइकोलॉजी है तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया में. आपको आपका रिस्क आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है. अगर आपको 2 लॉट में कंफर्ट है तो 2 लॉट का ही काम करो. तो मार्केट निफ्टी में कितना लॉस होता है? 100 पॉइंट फ्लक्चुएशन तो 5,000 रुपये होता है. अगर आप 10 लॉट करते हो तो 50,000 को नुकसान होता है ना. तो ऐसा नुकसान क्यों करो जो जहां पे आपको कंफर्ट ही नहीं है. निफ्टी में लॉस होता नहीं है, फिर भी देयर आर पीपल हु कीप कॉलिंग एंड टेलिंग मी मुझे लाख रुपए का नुकसान. लाख रुपए का नुकसान निफ्टी में 50,000 का होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है. अगर आप ओवर ट्रेडिंग में एक्सेसिव वॉल्यूम करते हो, ये कि भाई मेरे को 1 महीने में मेरे को पैसा कमाना है, अगर आपको मार्केट में टिका रहना है फॉर इयर्स इन ट्रेडिंग, यू शुड हैव अ वेरी कंट्रोल्ड वॉल्यूम. 2 लाख 3 लाख आपको लगेगा मेरे को कुछ कमाने को नहीं मिलता है, 2 लाख में क्या कमाएंगे, 3 लाख में क्या कमाएंगे. ट्रेडिंग इज लाइक मजूरी. ट्रेडिंग इज लाइक लेबर वर्क. एक मजदूर रहता है, वो दिन का वेजिस पे काम करता है, दिन का वेजिस मिलता है, वो खुश होता है. इंट्राडे ट्रेडर और अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर इज लाइक अ लेबरर. उसको अपना प्रॉफिट से मिलना है. दिन का काम करो, 2 दिन का काम करो, पैसा मिलो, चैप्टर क्लोज. आपको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, आपको फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है. दुनिया इधर का उधर हो जाए, आपका लेबर है. अगर स्ट्राइक होता है तो लेबरर भूखा मरता है. अगर कोई स्ट्राइक होता है, अगर कोई लेबरर रहता है वो लगेज उठाता है, या कोई टैक्सी का स्ट्राइक होता है तो टैक्सी का स्ट्राइक होता है तो टैक्सी का 2 दिन टैक्सी नहीं चलेगा तो टैक्सी ड्राइवर को घर में पैसा नहीं जाता है. तो टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलाना ही पड़ता है, बिकॉज उसका दिन का 500 रुपया कमाना है टैक्सी चला के. अगर दिन का 500 रुपया नहीं कमाएगा, उसका घर नहीं चलेगा. सेम केस लेबरर, इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर इज लाइक अ लेबरर. ही हैज टू ट्रेड विथ स्मॉल प्रॉफिट. ही कैनॉट, टैक्सी ड्राइवर कैनॉट से मुझे आज लाख रुपया कमाना है, 2 लाख कमाना है. वो पॉसिबल नहीं है, वो होगा भी नहीं, जिंदगी में नहीं होएगा. सो अगर ट्रेडिंग में काम करना है, ट्रेडिंग में काम टिकना है, यू हैव टू सर्वाइव योरसेल्फ इन ट्रेडिंग. Then you have to define very well in advance what is your risk bearing capacity and what is your thing. So by doing objective analysis, we are defining a trend and your loss will never be heavy unless you are over trading beyond your capacity. So market, you need to identify trends. As I said, market कभी एक साथ में चलता है, market move zigzag चलता है, up down, Z जैसा चलता है. Z कैसा अल्फाबेट है, Z अल्फाबेट को अपन हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, Z वर्टिकल रहता है. अगर उसको मैं टर्न करके हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, कैसा अप डाउन होके ऊपर जाता है इस तरह. तो zigzag resembles series of waves and moves and the direction of the peaks and troughs constitute the market. अभी मैं आपको बता रहा था ट्रेंड क्या होता है. हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इज एन अप ट्रेंड. ये बहुत जनरल है, इट इज वेरी रफ, इट इज वेग, बिकॉज इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो व्हाट, मेरे को 15 रुपए हायर बॉटम लगता है तो कोई दूसरा बोलेगा नहीं ये तो छोटा सा हायर बॉटम है, मेरे को बड़ा पेज नहीं चाहिए. सो दैट इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो सब्जेक्टिव एनालिसिस इज समथिंग लाइक दिस. हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इज अ डाउन ट्रेंड. साइडवेज मतलब क्या हो गया, मेरा भाव अगर 20 रुपए और 10 रुपए के बीच में चल रहा है फॉर 2 months और 1 month और 15 दिन, मार्केट इज मूविंग बिटवीन दैट, इट इज कॉल्ड एज साइडवेज बिहेवियर. सो आफ्टर अ करेक्शन, जैसे मार्केट बढ़ गया, अभी टूट गया, 5400 हो गया, फ्रॉम 6,000 5400 आ गया. ना 5400 से मार्केट 5800 के बीच में घूमेगा. तो 5800 और 5400, तो मार्केट अगर 15 दिन इधर ही रह गया तो मार्केट विल बी साइडवेज. आफ्टर एनी स्टीप राइज, एक थंब रूल्स है, कोई भी बड़ा तेजी हो जाता है या बड़ा मंदी होता है इन अ रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम. अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, अभी 10 दिन से मार्केट जोर से घट गया,
अगर 10 दिन मार्केट जोर से कट गया तो पुल बैक आएगा, उसमें टाइम लगेगा, पुल बैक आएगा वो समझो 1 महीना चलेगा, लेकिन उसमें कैसा मूवमेंट आएगा, 2 दिन अप हो जाएगा, तीसरा दिन डाउन होएगा, चौथा दिन डाउन है, फिर पांचवा छठा दिन 6-7 डे वापिस ऊपर चला जाएगा, वापिस 2 दिन, बट निफ्टी विल रिमेन बिटवीन 15,800 and 5,400. Market fluctuation will happen between the band. It will develop this band, but 6,000 will cross. So it will become a sideways market, and volatility between the band of 5,400 and 5,400 and 5,800 will happen. So that will be said as the behavior of the market. It does not happen that कल था ना, कल ऊपर था आज नीचे है, तो मार्केट क्या होता है समझ में नहीं आता है. When the market is becoming sideways, किसी को समझ में नहीं आता है. मार्केट when is falling and still it is falling and people still say that market समझ में नहीं आता है, sideways लगता है. When the market is falling every day, it is not a sideways market, it is a trended market. One side down, one side up. For last 10 days, it is a down market. Okay, but this is very subjective because market falls 15 days. 15 days, 2 days is down, 1 day is up, another 2 days is down, another 3 days is up, and another 2 days is down. ऐसे करते मार्केट ऊपर नीचे होता है. So therefore, one needs to identify trend. So higher top market will move up with higher top higher bottom formation and lower top lower bottom formation sideways. Support and resistance. What is support? Support is something where buying may emerge. Resistance is something where supply or selling may emerge. Selling can be profit booking. Suppose we are talking about resistance of 100 rupees and the price is 98 rupees. Then we are saying that at 100 rupees supply is likely to come, selling is likely to come, profit booking of the long position is likely to happen. So there will be a resistance at higher levels and price will not be able to cross 100 rupees. So then we are calling it as resistance. Moment resistance is crossed, resistance does not mean that the price will not cross, or support does not mean that the support will not violate it. So if the overall trend is up, overall trend, then resistance will be keep getting crossed after small pause, and in falling market supports will keep getting violated after small pauses, but resistance will not get crossed. In a rising market, supports will not get violated, resistance will keep getting crossed. Your reversal happens when supports get violated in a rising market. In a falling market, resistance crossed, then downtrend is getting over. So support and resistance is where something where supply is likely to come. In case of supply resistance, support is there, buying may emerge, because suppose if we are saying that it's a rising market, price moves from 10 rupees to 20 rupees, from 20 rupees price falls to 15 rupees, 15 rupees the price moves to 25 rupees, but once again the price falls and comes near 20 and then to 15. So we will say that 20 rupees and 15 rupees is support, because that is from where the buying emerged and price moved up. Once again 20 rupees and 15 rupees are coming, so then we say there is support at 20 rupees and 15 rupees. So that means we are trying to anticipate that support or buying may emerge at 20 rupees and 15 rupees. So that is what we call as support. Exactly opposite is resistance, where supply is going to come. Market is falling from 100 rupees to 90 rupees, moves to 95 rupees, then moves, violates the support of 90 rupees and goes down, and then comes back once again after making 75, comes to 80. Now we will say that 80 rupees and 90 rupees are resistance because prices have fallen from that area. So that is where the supply zone has come. Supply had come earlier because support was violated. So 80 rupees and 90 rupees will be resistance. So when the come to 80 rupees and 90 rupees, we say resistance is there at higher levels, book profit or exit long position, recovery hota. So resistance is something where supply is likely to come. Support is something where buying is likely to emerge. Trend lines, if you are using Sharekhan or various other online terminal where there is, you can do technical analysis like trend line and all you can draw in any of the websites and charts. Trend line is suppose like you have something like this, the price is 100. These examples I will keep showing you in further in next few clippings. Trend line is something where it is from price is moved from 10 rupees to 20 rupees
and 20 to 15 rupees and then 25 rupees. What I will do is draw a bottom is 10 rupees, 15 higher bottom, and I will draw a trend line. The trend line will tell me that as long as the price is above the trend line, trend is up, but fluctuation will keep happening. Now when actually people are drawing trend lines, everybody draws trend line in various ways. So that is why I put this into subjective mode analysis. All this is subjective mode of analysis. Now when I spoke about height of higher bottom formation earlier, this shape which is shown in your presentation over here in front of you, the lowest point is 10 rupees. Then the next, where my mouse is there, it is 20 rupees. Then it falls to 15 rupees. Then once again it moves higher, slowly it moves higher to 25 rupees. Once again goes to 24 rupees and moves up. This is called as the height of higher bottom formation, where every bottom, this is a bottom, this is bottom, every bottom is higher than each earlier bottom. This is lower top, higher tops, every top is higher than the other top. So this is called as the height of higher bottom, how it will look in the actual chart. This is only for understanding purpose what we are doing, but all this is going to be taken care in the Excel sheet. Then it is lower top, lower bottom formation. When the market is falling down, it will always move like 3 days down, 2 days up, 5 days down, 2 days up, 5 days down. So this is a lower top, lower bottom formation. Market never moves in straight line. This is an illustrative chart. So market हमेशा lower top, lower bottom इसको बोलते हैं, it will fall down in lower top, lower bottom formation. Now what is sideways market? When market is in a defined band, market 100-120 के बीच में घूम रहा है, तो क्या होता है कि अर्लियर पीक 120 का पीक भी नहीं क्रॉस करता है, 100 रुपए का बॉटम भी नहीं तोड़ता है, उसके बीच में घुमाता है, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, ऐसे करते करते वो बैंड के बीच में ही चलता है between 100 rupees and 120. So this is what it's called as the sideways market. Now the trend line that I was talking about some time back, if I'm taking the high, this is a chart which is a candlestick chart. These are the trend lines. So as long as this is a falling trend line where my mouse is there, this is a falling trend line. So as long as this trend line is falling and it is not getting crossed, trend is down. In between you will see market 1 day going up, 2 day going down, all this will happen. But the trend is down. So as long as this is a channel also, this is a falling channel. So this is all part of technical analysis, which is right now we are talking only for understanding purpose. It is not required when we are doing our actual Excel sheet. But this is required just because we are going about in a method into an Excel sheet, come to an up and down. That is why we have to explain what is briefly what is. So what is a trend? And our focus is completely on the objective analysis. Statistical analysis, objective analysis. Moving average is such a simple tool which is useful for you to identify an uptrend and downtrend. You don't have to do any analysis in a moving average. Simple, if I am using a 10-day moving average, 10-day moving average is what? 10 दिन का closing price लो, add करो, divided by 10 is a moving average. तो हर दिन का जो average price रहता है, अगर मेरा price उसके ऊपर चल रहा है, 10-day average के ऊपर चल रहा है तो uptrend है, 10-day average के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है. अगर मेरा एवरेज 100 रुपीज के ऊपर है और मेरा प्राइस 105 रुपए चालू है तो मैं उसको अप ट्रेंड बोलूंगा, वो अप ट्रेंड में है. 105 में दिन में वो फ्लक्चुएशन होगा, 107 रुपया होगा, 102 रुपया होगा, 105 103 रुपया होगा, कुछ भी होएगा. बट जब तक 100 रुपीज का मेरा एवरेज का आज का पॉइंट है, जब तक उसके ऊपर चल रहा है तो मेरा अप ट्रेंड है. तो जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक अप ट्रेंड है. अगर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है. 10 दिन अगर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है. अभी का जो मार्केट घट गया तो पूरा डाउन ट्रेंड में आया था 15 दिन से, तो एवरेज के नीचे है तो 15 दिन मेरे को बेनिफिट हो गया कि 15 दिन मार्केट नीचे गया. एवरेज के नीचे है तो आपका ट्रेंड डाउन है. ओके, एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड अप है. सो मूविंग एवरेज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इजी वे टू यूज tools available in technical analysis. Moving averages are one of the most popular and easy way to identify a trend. They are smooth. They smoothen out the data in series to spot the trend.
हम लोग जनरली यूज करेंगे वो सिंपल मूविंग एवरेज करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअली एडिशन ऑफ, अगर हम लोग 5 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो 5 डे का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करो, 100 रुपया, 101 रुपया, 105 रुपया, 110 रुपया, ये 5 दिन का प्राइस कर लो डिवाइडेड बाय 5। सिंपल, हम लोग बहुत ही सब सिंपल रखने वाले हैं, कोई ज्यादा एडवांस में नहीं जाने वाले, बट सिंपल एंड इफेक्टिव वे। तो दिस इज अ ट्रेंड लाइन। अगर 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 60, 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12। सो आज का मूविंग एवरेज 12 हो गया। सो अगर 12 रुपए के ऊपर प्राइस चल रहा है तो मेरा, और करंट लास्ट क्लोजिंग प्राइस 15 रुपए है, तो मेरा ट्रेंड अप है, एंड वाइस वर्सा। अब ये चार्ट में आपको दिख रहा है, वहां पे रेड कलर की ट्रेंड लाइन, ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर मेरा प्राइस अगर रेड, और ये जो कैंडलस्टिक का चार्ट है, अगर मेरा प्राइस जो है वो रेड कलर के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है, रेड कलर के एवरेज के नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है। इसके बीच में एवरी डे टू डे देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ से अबाउट, ये सेंसेक्स का चार्ट है, सो अबाउट 500 पॉइंट का फ्लक्चुएशन है, 200 पॉइंट का फ्लक्चुएशन है, बट एज लॉन्ग एज द प्राइस इज बिलो द ट्रेंड, बिलो द एवरेज, माय ट्रेंड इज डाउन। तो जब भी आपको बड़ा ट्रेंड मिलता है, जब भी आपको डाउनफॉल मिलता है, तभी आपको बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि आप शॉर्ट पोजीशन खड़ा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, आपका बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। बट जनरली क्या होता है कि अगर ये एवरेज के नीचे चालू है तो लोग हमको फोन करके पूछते हैं, अरे मेरा बाय पोजीशन फंस गया, अभी मैं क्या करूं। इस सिचुएशन में हम लोग ऐसे ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकते, इन द सेंस दैट अगर हमारा ट्रेंड डाउन है तो अगर आपका पोजीशन बाय है तो आपका पोजीशन पहले कट जाना चाहिए। अगर नहीं कट गया तो मार्केट 1000 पॉइंट घट गया इधर से, ऊपर से नीचे से, तो डाउन ट्रेंड है, और 1 महीना मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर आपका पोजीशन मार्केट के साथ है, अगर लाल कलर की लाइन है के ऊपर लाइन रहता है और आपका पोजीशन रहता है लॉन्ग का, तब तक खड़े रहो। रेड कलर के लाइन के नीचे गया तो पोजीशन फेंक दो। सेम केस लाइन ब्लू आपका ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो लॉन्ग ट्रेड है, ट्रेंड लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। इतना सिंपल मैकेनिकली थॉट प्रोसेस रखना है। इस वक्त ये नहीं सोचना है अरे मेरा अभी ट्रेंड डाउन हो गया लेकिन मेरे को 20 रुपए लॉस हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूं, मेरे को लॉस हो रहा है, मैं नहीं बेचूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। तो खड़ा रहोगे तो क्या होगा, ये रेड कलर के लाइन पूरा का पूरा करेगा, 20 रुपए का लॉस का भी 100 रुपए का लॉस हो गया। तो वो कभी करना नहीं है। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भले उसमें आपका 2 बार स्टॉप लॉस हो जाए, एग्जिट हो गए, चलेगा, लेकिन जब ही बड़ा मूवमेंट आता है तभी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज सिंपल टेक्निक है और इसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड यूजफुल ट्रेंड फॉर लेमैन टू आइडेंटिफाई। अभी ट्रेंड हमको पता चलता है अप है या डाउन है, बट ट्रेंड ऑल्सो अलोन इज नॉट इनफ टू look at the market condition, so we will be adding lot of other things to trend. Next is the relative strength. अभी strength सबसे important चीज है मार्केट में। अगर ट्रेंड अप है बट स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ मतलब क्या करते हैं हम लोग कि स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी। अगर रिलायंस का प्राइस 850 है, 850 डिवाइडेड बाय निफ्टी का प्राइस है 5600, तो 850 डिवाइडेड बाय 5600 एक रेशियो आएगा। अभी वो रेशियो का मतलब क्या होता है कि समझो स्ट्रेंथ मतलब क्या, अभी ये एक फॉर्मूला हो गया, रिलायंस डिवाइडेड बाय निफ्टी, उसका एक वैल्यू आएगा डेसिमल्स में। अभी स्ट्रेंथ मतलब क्या कि अगर मेरा बढ़ गया 1% पे से और निफ्टी बढ़ गया, मतलब आज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस निफ्टी हैज डन बेटर टुडे देन, सॉरी, Reliance has done better than Nifty today. Reliance moved up by 1% today, whereas Nifty moved only by 0.5%. This is only on one day standalone basis. What actually we will be doing is that पिछले 7 दिन में हम लोग जो ट्रेडिंग स्ट्रेंथ यूज करेंगे is for trading purpose, short term purpose. We are not looking at longer term strength in this para. Okay. तो स्ट्रेंथ मतलब हम लोग उसको आरएस बोलते हैं, आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएस। ओके, तो स्ट्रेंथ मतलब जैसे समझो रिलायंस अगर मूव पास बढ़ता है निफ्टी से तो रिलायंस स्ट्रेंथ गेन करता है। अगर रिलायंस
स्टेडी है लेकिन निफ्टी जोर से टूट गया तो रिलायंस में स्ट्रेंथ ऐड होगा। ओके, अगर रिलायंस स्टेडी है और निफ्टी ज्यादा टूट रहा है तो रिलायंस में स्ट्रेंथ ऐड होगा। अगर रिलायंस घट रहा है बाय 1% एंड निफ्टी हैज फॉलन बाय 2%, मतलब क्या हो गया कि रिलायंस कम घटा है, निफ्टी ज्यादा घटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि रिलायंस में स्ट्रेंथ ऐड हो रहा है बिकॉज इट इज फॉलिंग एट अ लेसर स्पीड देन निफ्टी। दिस इज ओनली ए स्टैंड अलोन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में, 7 ट्रेडिंग डे को कंपेयर करते हैं, 7 ट्रेडिंग डे टू डे बेसिस का हम लोग कंपेयर करते हैं एवरी डे का, और उसको हम लोग 7 डेज में कंपेयर करते हैं कि क्या रिलायंस में स्ट्रेंथ है या नहीं है, नॉट ओनली अगेंस्ट द निफ्टी बट अगेंस्ट 100-200 स्टॉक्स जो पड़े हैं उसके सामने। तो उसको हम लोग एक रेटिंग देते हैं, रेटिंग 0 to 100 स्केल में एक रेटिंग आता है। तो रिलायंस को एक रिलेटिव स्ट्रेंथ करके वैल्यू रहेगा 70, एग्जाम्पल 70 का 70%। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 7 दिन में, पिछले 7 ट्रेडिंग डेज में रिलायंस 70% ऑफ द टाइम हैज डन बेटर देन निफ्टी। तो स्ट्रेंथ, हर एक स्टॉक को एक स्ट्रेंथ होगा, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, किसी का 70 हो सकता है, किसी का 80 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है। एवरी स्टॉक फ्यूचर जो लिस्टेड है अपना, उसको एक स्ट्रेंथ दिया जाता है। स्ट्रेंथ दिया जाता है, वो डिसाइड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी क्या है। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है उसमें पावर ज्यादा रहती है, जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, इंक्रीज होती है, उसकी पावर ज्यादा होती है। भले अगर किसी की स्ट्रेंथ 50 है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आज 50 है, कल 51 है, कल 55 है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है या घट रही है, तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ विल डिसाइड, अगर 10 आइटम है, 10 आइटम में से बाई सिग्नल आया है 5 आइटम में, तो 5 आइटम में से मुझे एक आइटम सिलेक्ट करना है, तो मैं सबसे जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट रिलायंस का 70 पे है, तो मैं, और दूसरा समझो एसबीआई है जिसका 40 है, आइडिया सेल्यूलर है उसका 69 है, फिर ग्रासिम में उसका 54 है, तो मैं सब में बाय सिग्नल आया हुआ है लेकिन मैं प्रेफरेंस रिलायंस को दूंगा, उसका सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस ऑफ वन सिक्योरिटी अगेंस्ट अनदर सिक्योरिटी, इट इज ऑफन कंपेयर टू निफ्टी, सेंसेक्स, जो बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क के सामने कंपेयर किया जाता है। और फिर जो अपने 200 स्टॉक की लिस्ट है उसके अंदर हर एक को एक रेटिंग दिया जाता है, और उसकी जो सॉर्टिंग होती है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है फॉर अप ट्रेंड, फॉर डाउन ट्रेंड लोएस्ट टू हाईएस्ट होती है फॉर डाउन ट्रेंड। ओके, सो ये हमको नॉट ओनली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टॉक फ्यूचर मार्केट बट वर्ल्ड मार्केट जो फंड मैनेजर्स रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डू इट फॉर द कंट्री। अगर इंडिया का एक इंडेक्स है, फिर दूसरे कोई चाइना का इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स है, सिंगापुर का इंडेक्स है, यूरोप फिक्सी का इंडेक्स है, अमेरिका का इंडेक्स है, ऐसे वर्ल्ड के 50 है, तो वो कंपेयर करते हैं कि अमेरिका का इंडेक्स अगर मेरा बेंचमार्क इंडेक्स है तो इंडिया का इंडेक्स बढ़ रहा है क्या घट रहा है, जापान का सामने बढ़ रहा है क्या घट रहा है डाउ जोन्स के सामने। तो उससे उनको एक आइडिया लगती है कि फंड फ्लो इंडिया में रखना है या नहीं रखना है, जापान में रखना है, अमेरिका में रखना है, यूरोप में रखना है, चाइना में रखना है, किधर भी। अगर कोई कंट्री का रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है तो ये मतलब है कि वहां पे परफॉर्मेंस अप के लिए ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी का रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है तो वहां पे सेलिंग ज्यादा है, तो वो फंड मैनेजर अगर होगा तो जहां पे स्ट्रेंथ कम है वो कंट्री से हट जाएगा, वो कंट्री में पैसा नहीं आएगा। तो एफआई जब भी काम करते हैं ये स्ट्रेंथ पैरामीटर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हर एक एनालिस्ट रहता है, वर्ल्ड मार्केट में बोलो या एफआई में रहो बोलो या किधर भी बोलो, अपना अपना एक मेथड होता है उनका। बट जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, हर लोग मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, बट सबका लॉजिक और कॉन्सेप्ट यही होता है
कि स्ट्रेंथ कंट्री में है या नहीं है। इंडेक्स में स्ट्रेंथ, निफ्टी में स्ट्रेंथ है क्या, फिफ्टी में स्ट्रेंथ है, या डैक्स में स्ट्रेंथ है। तो डैक्स में स्ट्रेंथ है मतलब इंडिया में पैसा क्यों रखो भाई, डैक्स में डालो। डैक्स बढ़ने वाला लग रहा है, इंडिया का इंडेक्स घटने वाला लग रहा है, तो डैक्स में पैसा डालो बिकॉज डैक्स बढ़ने वाला लग रहा है। या डैक्स कम घटने वाला है लेकिन इंडिया जोर से घटने वाला है, तो डैक्स से पैसा निकालो, सॉरी इंडिया से पैसा निकालो, डैक्स में डालो। तो एफआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बट हम लोग वो माइक्रो लेवल पे यूज करने वाले। अगर समझो, अगर आप विद इन द सेक्टर भी आपको चुनना है, अगर मुझे हीरो होंडा चुनना है, बजाज ऑटो चुनना है टू व्हीलर में, तो दोनों में से स्ट्रेंथ किसका अच्छा है, तो भी मुझे एक स्टॉक चुनना है। जैसे मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और टाटा मोटर्स है। अगर तीनों में से मुझे चुनना है एक, तो जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है वो मैं टू व्हीलर का पैक में से लूंगा। तो सिलेक्शन विद इन द सेक्टर कर सकते हैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो स्ट्रेंथ इज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर किसी का ट्रेंड अप रह सकता है बट स्ट्रेंथ वीक है, जैसे अभी ये जो फॉलिंग मार्केट हो और अभी ये मार्केट थोड़ा पुल बैक में आ रहा है, तो पुल बैक में जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसी में जाना है। जिसका स्ट्रेंथ वीक है, आंध्रा बैंक का अगर बाय सिग्नल आया है या सिंडिकेट बैंक में बाय सिग्नल आया है और लेकिन उसका स्ट्रेंथ 30 है, तो उसको लेगा नहीं मैं। लेकिन वही चीज अगर समझो ऑटो में है, बाय सिग्नल आया है और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 है, और आंध्रा बैंक का सिग्नल में आया है बाय का और उसका स्ट्रेंथ 30 है, तो मैं 30 वाले को नहीं लूंगा क्योंकि मैं 60 वाले को लूंगा। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसी को लेना है क्योंकि उसके अंदर पावर रहती है ऊपर जाने के लिए। अगर मैं सेलिंग के लिए देख रहा हूं तो आंध्रा बैंक में मेरा सेलिंग का स्ट्रेंथ है, और समझो रिलायंस में भी सेल सिग्नल आया है, उसका स्ट्रेंथ है 60, तो मैं रिलायंस को नहीं लूंगा सेल करने के लिए, बैंक को लूंगा। जो सेलिंग में जिसका स्ट्रेंथ लो है, कम है, उसको पहले चुनना है। तो सिग्नल अगर 3 स्टॉक्स में है तो सेलिंग के लिए देखना है, तो जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है उसको लेना है। तो स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि आपको कौन सा आइटम में काम करना है, कौन सा आइटम में नहीं करना है। ट्रेंड है वो आपको एक गाइड देगा कि अप ट्रेंड है, ओवरऑल अप जाने वाला है, बट अप जाने मार्केट जब भी अप जाता है तभी सभी में अप जाता है। तो अप ट्रेंड तो सभी में हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ है कि नहीं है वो चेक करना जरूरी होता है। तो वो स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रेंथ है वो बहुत प्रकार से कैलकुलेट हो जाता है। जैसे मैं बताया अभी, कोई आरसीएस यूज करता है, कोई रिलेटिव परफॉर्मेंस करता है, कोई प्राइस रिलेटिव का। सबका जो अप्रोच है, सबका जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही है कि मुझे स्ट्रेंथ बताओ, किसमें स्ट्रेंथ है, किसमें स्ट्रेंथ वीक है, कौन सा स्टॉक वीक है, स्टॉक स्ट्रांग है। तो वीक स्टॉक में ऐसा होता है कभी कभी कि सबसे वीक है और वो बढ़ जाता है वो, बट जो सबसे ऐसा लगेगा आपको 10 रुपए सारे 20 रुपया हो गया, बट अगर उसका 20 रुपया होने के बाद भी उसका स्ट्रेंथ कम है, तभी भी हम लोग उसको नहीं लेंगे। बिकॉज वीक स्टॉक जब भी मार्केट घटना स्टार्ट हो जाता है, वीक स्टॉक में फोर्स ज्यादा आता है। जो स्टॉक्स पहले वीक हो जाते हैं वो उसमें फॉल ज्यादा आता है। जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ कम ज्यादा रहता है वो घटते हैं इन डाउन ट्रेंड। नहीं ऐसा नहीं, घटते हैं, सब घटते हैं। डाउन ट्रेंड होगा तो सब घटेंगे, अप ट्रेंड होगा तो सब बढ़ेंगे, बट कौन सा बढ़ने में स्ट्रेंथ है, कौन सा नहीं, जानना बहुत जरूरी है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम लोग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल के ऊपर चार्ट है। जो पहला चार्ट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, वो जो रेशियो का चार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस डिवाइडेड बाय निफ्टी। अभी ये जो है ग्रीन ऊपर पे पहली, वो रेशियो की चार्ट है, और ये जो रेड कलर की एवरेज है। जैसे कि क्या होता है कि कभी ये सेंसेक्स और एसीसी का चार्ट है, तो सेंसेक्स ये जो रेशियो है वो ऊपर जाता है, मतलब क्या, इट इज डूइंग बेटर देन द सेंसेक्स। अगर वो रेशियो नीचे जाता है तो इट इज वीकर इन द कंपेयर टू द सेंसेक्स। और ये ट्रेंड एक फिल्टर होता है, तो इससे एक आइडिया मिलता है कि वो पर्टिकुलर है या नहीं है। ये हम लोग सब चार्ट्स में देखते हैं। आपको कोई चार्ट वार्ट देखना नहीं, आपको एक एक्सेल शीट में सब हम लोग ने ये जो लॉजिक जो है वो कन्वर्ट किया है। आपको टेक्निकल एनालिसिस समझने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब एक्सप्लेन बता रहा हूँ क्या कि उसको लॉजिक क्या है आपको समझना चाहिए। सो वी आर लुकिंग एट द स्टॉक्स विच आर इन अप ट्रेंड फॉर बाइंग, which are, and for selling we are looking stocks which are in a downtrend.
in downtrend, we are looking for to selling stocks which are at weak. In uptrend, we are looking for stocks to the buy. So ये करने से आपको जो एक्सेल शीट में आपको बाद में दिखाऊंगा, उसमें आपको स्ट्रेंथ किसमें और वीक में वो आपको दिखने में आएगा. ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कर दिया हमने. बेसिकली इसकी जो रेटिंग होती है, जो मैंने बताया आपको कि 0 to 100 में होती है. अभी हमारा जो मेथड में है, निफ्टी हमेशा 100 पे रहेगा, बिकॉज हमारा बेंचमार्क निफ्टी है इन स्टॉक फ्यूचर के लिए. तो निफ्टी का स्ट्रेंथ हमेशा 100 होता है इंडेक्स. और ये जो शीट का ऑब्जेक्टिव है कि स्टॉक फ्यूचर में काम करना है, तो निफ्टी का हमेशा 100 पे रहेगा बेंचमार्क. जैसे इसमें और ऐसे बहुत सारे एक थंब रूल लॉजिक है आपको कंपेयर करने के लिए कि भाई स्ट्रेंथ है या नहीं. फॉर एग्जांपल, निफ्टी का जो बॉटम है वो समझो 2 दिन पहले हुआ था 5400. तो 2 दिन पहले जो 5400 का प्राइस है निफ्टी का, 2 दिन पहले रिलायंस का प्राइस 750 है फॉर एग्जांपल. आज रिलायंस का प्राइस, जो स्टॉक्स जो 5400 के टाइम पे निफ्टी के ऊपर है और ज्यादा बढ़ गए, दैट इज बेटर. बट जो स्टॉक्स 5400 के टाइम पे लो था वो स्टॉक में, लेकिन वो लो तोड़ दिया है, तो वो स्टॉक वीक है. एक जनरल थंब रूल के ऊपर एट 6000 अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करते थे, जैसे कि सन फार्मा एक्सेट्रा, 59 में जब निफ्टी था तभी सन फार्मा 900 रुपया था फॉर एग्जांपल. बट मार्केट घट गया है, 5600 पे आया, लेकिन सन फार्मा 900 वाला 1000 हो गया. सो दो स्टॉक्स विच आर क्रॉसिंग द टॉप बनता है, उसका भाव के ऊपर कर रहे हैं, वहां पे ट्रेंड कंटिन्यू होता है, स्ट्रेंथ कंटिन्यू होता है. बिकॉज उसकी जो टॉप जब भी मार्केट का हुआ था, वो टॉप का जो भाव है वो उसको एक्सीड करके जा रहा है, एंड वाइस वर्सा. तो एक जनरल थंब रूल है मार्केट को देखने के लिए कि मार्केट क्या हो रहा है. अगर समझो हीरो होंडा है 2008 का, 2008 में अगर आप हीरो होंडा का भाव देखेंगे और 2008 में आप निफ्टी का भाव देखेंगे, तो हीरो होंडा आज की तारीख में 5 टाइम्स बढ़ा है और निफ्टी 2008 से लेके आज तक 2008 का पीक जो बनाया था वो अभी तक क्रॉस नहीं किया. तो इन 5 years हीरो होंडा हैज आउट परफॉर्म द मार्केट. टीसीएस को अगर हम 2008 के लेवल कंपेयर करते हैं क्या था और आज क्या है, तो टीसीएस आउट परफॉर्म द मार्केट. अगर हम कंपेयर करते हैं टीसीएस का 2000 जब भी पीक था, जब भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बूम था, इन्फोसिस, और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं आज की तारीख में, तो वो पीक को क्रॉस कर दिया है आज की तारीख में भी. लेकिन अगर मैं विप्रो को लेता हूं, तो विप्रो का जो 2000 का पीक था, 2000 इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बूम था, उसमें विप्रो ने जो हाईएस्ट प्राइस बनाया था वो आज भी नहीं क्रॉस किया है. तो इन्फोसिस ने किया है, तो इन्फोसिस स्ट्रॉन्गर स्टिल देन विप्रो. ओके, वही चीज एचसीएल टेक को लेता हूं. एचसीएल टेक को कंपेयर करते हैं इन्फोसिस के साथ. इन्फोसिस का साथ में तो वो 2010 का टॉप था इन्फोसिस का, और 2000 टॉप एचसीएल का था. एचसीएल सब्सटेंशियली बड़ा है कंपेयर टू इन्फोसिस. दैट मीन एचसीएल टेक इज स्ट्रॉन्गर देन इन्फोसिस. तो ऐसे करने से हमको पता चलता है कि कौन से स्टॉक में और कौन से में सस्टेनेबल है. स्ट्रेंथ क्यों आता है? क्योंकि बाइंग होता है. बाइंग क्यों आता है? क्योंकि उसका फंडामेंटल कोई ना कोई अच्छा रहता है, इसके लिए टेक ऑटोमेटिकली अच्छा होता है. तो ये इन अ लॉन्गर टर्म सिचुएशन, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, नॉट ओनली फॉर डेली शॉर्ट टर्म, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो. बट जैसे कि मीडिया में हम देखते हैं और सुनते हैं, इट इज मोर कॉइंड by brokers, everybody, it is for only for trading, but actually it is not. It is for longer term investment also. उसके कोई रूल्स होते हैं लॉन्ग टर्म टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं होता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. तो इसके लिए क्या होता है, उसको बोला ट्रेडिंग है तो टेक्निकल एनालिसिस देखो. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है. ओके, प्रॉब्लम नेगेटिव पॉइंट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस का सिनारियो होता है कि
उसको साइकोलॉजिकल कंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी को समझने का कोशिश नहीं करता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हर आदमी अंडरस्टैंड करने को देखता नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस में कैसा, स्कूल में कॉमर्स किया रहेगा, ग्रेजुएट रहेगा, हाँ वो बोलेगा मेरे को तो रिजल्ट समझता है, अरे ग्रोथ आ गया, ये उसके क्या समझने का क्या है, उसका रिजल्ट अच्छा है, ये अच्छा है। देयर आर रीजन वाई अ गुड रीजन इज गिवन इज द प्राइस इज मूविंग अप एंड वाइस वर्सा। अभी फंडा तो वैसा टेक्निकल एनालिसिस में रीजन नहीं होता है, रीजन होता है बट टेक्निकल रीजन होता है। तो अगर वो टेक्निकल रीजन समझने का कैपेसिटी रखने का इंटरेस्ट है तो पता चलेगा क्या होता है, तभी तुमको वो पता चलेगा कि भाई उसके पावर क्या है। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ का एग्जांपल मैंने आपको दिया बात करने में कि क्या स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, हाउ स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट होती है। अभी हमने अप ट्रेंड भी देखा, सो वी विल लाइक टू ट्रेड लॉन्ग इन स्टॉक्स विच आर इन अप ट्रेंड। वी वुड लाइक टू ट्रेड इन स्टॉक्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ, and we would also like to trade in stocks where open interest is healthy matlab rising, where their volumes are rising, open interest is rising. And what is open interest? Open interest is simply the net outstanding position of the market of the stock. Open interest is just telling you whether position is added or reduced. It does not tell you whether position added is for buying or for selling. It does not tell you whether, it does not tell you कि अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है तो भाव बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और भाव टूटेगा। और सो ओपन इंटरेस्ट ऑन स्टैंडअलोन बेसिस cannot contribute to anything concrete. So open interest to be used along with the trend and strength will give you an idea whether the open interest is added in buying favor or selling favor. Open interest always has to be rising. हमको अगर ट्रेड में करना है कोई भी लॉन्ग और शॉर्ट, ओपन इंटरेस्ट हमेशा बढ़ना ही चाहिए। घटा हुआ उसमें आप ओपन इंटरेस्ट में बाय करोगे और प्राइस भी घट गया है तो उसका इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट का इम्प्लीकेशन। Open interest is something which is a total outstanding position of the market. It represent the total number of outstanding longs and short. अभी outstanding समझो मार्केट 4 आदमी का मार्केट है। आदमी ए उसको बाय करना है, उसने एक लॉट बाय कर दिया। आदमी बी उसको सेल करना है, उसने एक लॉट सेल कर दिया ए को। अभी एक ने बाय किया है और बी ने सेल कर दिया, तो एक ने बाय किया है, बी ने सेल कर दिया। अभी ट्रेडेड वॉल्यूम कितना हो गया? एक का 1। ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 2 का, क्योंकि दोनों की आउटस्टैंडिंग पोजीशन है मार्केट में, बाय की भी और सेल की भी। एक की बाय की है और एक की सेल की है, तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन हो गई 2। वॉल्यूम कितना हो गया? 1। दोनों का वॉल्यूम मिला के एक ट्रांजैक्शन हो गया वॉल्यूम। अभी ओपन इंटरेस्ट हो गया 2। अगर समझो और एक आदमी आता है, तीसरा आदमी सी, वो उसको भी बाय करना है, तो वो बोलता है मेरे को एक लॉट बाय करना है। बट आदमी बी जो है जिसने ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन ली है पहले, वो बोलता है मेरे को तो वापिस बेचना है, तो वो सेकेंड लॉट सेल करता है आदमी सी को। आदमी सी की पोजीशन बाय की क्रिएट हुई, आदमी सी की और एक पोजीशन सेल की होगी, उसके 2 लॉट हो गए। आदमी ए की 1 लॉट है, आदमी बी 1 लॉट है। टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन कितना हो गया? 4 हो गया। 2 की आदमी बी की 2 पोजीशन शॉर्ट है, आदमी ए की 1 पोजीशन लॉन्ग है, आदमी सी की 1 पोजीशन शॉर्ट है, सॉरी लॉन्ग है। अभी आदमी है, चौथा आदमी आता है मार्केट में, वो बोलता है मेरे को बाय, अभी उसको बाय करना है और वो बोलता है कि मेरे को 1 लॉट बाय करना है। अभी आता है आदमी ए, फर्स्ट आदमी जिसने पहले बाय किया हुआ था। अभी आदमी डी को अभी बाय करना है, लेकिन आदमी ए उसको बेचना है, तो बोलता है आदमी ए बेचता है आदमी डी को, तो आदमी ए की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, डी की न्यू पोजीशन बन गई। मतलब क्या होगा? ओपन इंटरेस्ट अभी 4 ही है,
चेंज नहीं हुई है, क्योंकि एक की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, अभी आउटस्टैंडिंग पोजीशन डी की आ गई तो 4 होगी. सो इट इज बेसिकली ओपन इंटरेस्ट इज अ नेट आउटस्टैंडिंग पोजीशन एट द एंड ऑफ द डे ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो अगर बायर की ज्यादा पोजीशन आउटस्टैंडिंग में है और प्राइस ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई बाइंग हुई है, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है और पावर आने का चांसेस है, बिकॉज स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है और पावर रहेगा, फोर्स रहेगा, वॉल्यूम भी बढ़ गया है. वॉल्यूम भी अगर बढ़ा हुआ रहेगा साथ में, तो हम लोग ये कहते हैं कि ओवरऑल बाइंग पोजीशन स्ट्रांग है और बाइंग के साइड में रहना चाहिए. एंड वाइस वर्सा इन द अपोजिट केस, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइस घटता है तो शॉर्ट पोजीशन ऐड हो जाती है. बट अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को स्टैंड अलोन बेसिस में देखता हूं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है लेकिन भाव घट रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन लॉन्ग में है और आप सिर्फ बोलते हो अरे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है फिर भी प्राइस क्यों घट रहा है. प्राइस इसके लिए घट रहा है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रेंड डाउन है ना, तो इसके लिए वो घटेगा ही और जोर से घटेगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट पोजीशन ऐड हो रही है. द सेम वे इसी के लिए ट्रेंड जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है कि ट्रेंड के साथ में अगर वॉल्यूम बढ़ गए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, तो और स्ट्रेंथ भी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव है, तो उसमें हमको लॉन्ग साइड में रहना है, शॉर्ट साइड में नहीं रहना है. Open interest alone does not give any clear indication but play an important role after volumes. It confirms the underlying position on the long and short side depending on the direction of the price movement. Now this is the important clipping which will give you and help to create strategy. अगर ओपन इंटरेस्ट अभी आप देखोगे ऊपर में मैंने दिया है ओपन इंटरेस्ट है, फिर प्राइस है, फिर ट्रेंड है, फिर वॉल्यूम्स है, कैंडल मूवमेंट. अभी कैंडल मूवमेंट क्या है? कैंडल मूवमेंट मतलब क्या है? सिंपल, अगर प्राइस करंट प्राइस ओपन के ऊपर है तो कैंडल मूवमेंट पॉजिटिव. अगर करंट प्राइस है वो ओपन से नीचे चल रहा है तो ओपन इंटरेस्ट इज सॉरी तो कैंडल मूवमेंट इज फॉलिंग. एंड देन नेगेटिव, अपन बोलते हैं ना बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है. एक मिनट. हेलो, हाँ हाँ बोल. अगर हमारे राजन छः साल नहीं अभी ये वाला काम को लगेच लगेच नाही भेटणार. माझे पण इंस्टॉल नाही असेल तर बघतो मी काय, पण 10 तर नाही होणार. बघतो तरी पण थोडेसे टाकून जमत असेल तर मी तुला फोन करतो थोड्या वेळाने. आणि त्यासाठी आता मला चेक या आठवड्यामध्ये येणार होता मनीकंपनीचा, अजून आला नाही. तो आला असता कसं आलं असतं की बघतो का थोडंसं काय टाकता येतं तिथे टाकतो सांगतो तुला थोड्या वेळाने फोन करून चेक करतो. हाँ, ये जो शीट है, ये जो क्लिपिंग है, इसमें ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, ट्रेंड, वॉल्यूम, कैंडल मूवमेंट. कैंडल मूवमेंट क्या होता है कि जैसे मार्केट अगर क्लोजिंग है वो ओपन के ऊपर है तो पॉजिटिव कैंडल. अगर मतलब क्या है, अगर 100 रुपया ओपन है, आज मार्केट खुल गया, ओपनिंग हो गया मार्केट का और 100 रुपीज है और क्लोजिंग जो है वो 120 रुपीज है, तो कैंडल मूवमेंट पॉजिटिव है क्योंकि क्लोजिंग 120 है और ओपन 100 रुपीज है. ओके, ओपन 100 रुपीज है तो कैंडल मूवमेंट पॉजिटिव है. वाइस वर्सा, अगर ओपन 100 रुपीज है और प्राइस जो है वो 90 रुपीज है तो कैंडल मूवमेंट नेगेटिव हो गया. नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए. और दूसरा है वो इंडिसाइजिव, मतलब अगर मार्केट सुबह खुल गया 100 रुपीज पे, ऊपर 20 हो गया, नीचे में 90 हो गया और क्लोजिंग में 100 हो गया, तो ओपनिंग के आजू बाजू में क्लोजिंग है
ओपनिंग के आजू बाजू में क्लोजिंग है तो उसका इंडिसाइजिव डोजी करके पैटर्न है, उसको हम लोग इंडिसाइज, तो वो ठीक है। फिर हमको ये बेस के ऊपर इम्प्लीकेशन क्या है, बुलिश रहना है, स्ट्रेटेजी करना है, प्लान करना है। अभी जो पहला रो है, अगर मेरा माउस चल रहा है वहां पे अगर राइजिंग मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस अप। प्राइस अप मतलब क्या, आज के मुकाबले में कल का प्राइस ऊपर है कि नीचे। सपोज टुडे प्राइस इज 102 एंड येस्टरडे प्राइस इज 100 क्लोजिंग प्राइस, तो प्राइस इज अप। ओके, और ये जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो एंड ऑफ द डे डेटा पे करते, लाइव मार्केट में नहीं करते। मार्केट 3:30 के बाद जो बंद होता है, इट इज एन एंड ऑफ द डे एनालिसिस, लाइव मार्केट में नहीं होता है। जो हम लोग जो प्रोसेस करेंगे वो लाइव मार्केट में, ओके, लाइव मार्केट में ये जो हम कर रहे हैं वो नहीं होता है। एंड ऑफ द डे प्लानिंग करना है, नेक्स्ट डे आपको क्या एक्शन लेना है, उसी के लिए ये पूरा प्रोसेस है। ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग, प्राइस इज अप। प्राइस इज अप मतलब क्या है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस के सामने, लास्ट क्लोजिंग प्राइस के सामने अभी प्राइस अप है, मतलब टुडेज प्राइस ग्रेटर देन यस्टरडेज प्राइस, टुडेज प्राइस इज ग्रेटर देन यस्टरडेज प्राइस। देन ट्रेंड, अभी ट्रेंड जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफाइन किया, अगर मैं 10 डे मूविंग एवरेज यूज करता हूं फॉर एग्जांपल ऑन द मूविंग एवरेज, जैसे पहले बताया हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। अगर ट्रेंड अगर हम लोग मूविंग एवरेज पे यूज करते हैं कि 10 डे मूविंग है, तो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, प्राइस अप हो गया, कल के मुकाबले में प्राइस अप है लेकिन ट्रेंड भी अप है, और वॉल्यूम बढ़ गया, आज के मुकाबले में कल में वॉल्यूम बढ़ गया है। टुडेज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन यस्टरडेज वॉल्यूम, टुडेज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन यस्टरडेज वॉल्यूम। कैंडल मूवमेंट इज पॉजिटिव, टुडेज ओपन is greater than today's open is greater than today's closing is negative movement and today's closing is greater than today's open is positive. So अगर positive candle movement है, यानी कि yesterday's market में closing is greater than the opening, so it will be called as positive candle. The implication is bullish. If the implication is bullish, then the strategy is to buy. So with the help of open interest combination of trend, volume, candle movement, your objective is to buy. Once your objective is to buy, then you will look at the relative strength, जो हम लोग पहले बात किए, जिसका 5 आइटम बाय में आ रहा है, 5 आइटम बाय में आ रहा है, तो जिसका 5 आइटम में से जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है वो मेरा फर्स्ट चॉइस है। जिसका नेक्स्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, दैट इज द सेकंड चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। अगर 5 मुझे में से एक ही लेना है, एक आइटम लेना है, तो मेरा सबसे जो पहला 1 नंबर का हाईएस्ट स्ट्रेंथ है वो मेरा आइटम है, तो मैं एक ही आइटम में काम करना है मुझे आज के दिन में, तो मेरा सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाले में काम करना है। अगर हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला में काम करने का डिसाइड हो जाता है, देन कम्स द लेवल, देन कम्स द इंट्राडे लेवल, कि क्या लेवल में लेना है, क्या लेवल में प्रॉफिट बुक करना है इंट्राडे में, और क्या लेवल में ट्रेंड अप होएगा, क्या लेवल में ट्रेंड डाउन। So अगर मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, प्राइस इज राइजिंग एंड ट्रेंड इज अप, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, कैंडल मूवमेंट इज पॉजिटिव, दिस बुलिश एंड स्ट्रेटेजी इज टू बाय। नेक्स्ट रो में देखिए, ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग, प्राइस इज अप, ट्रेंड इज अप, वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग, कैंडल मूवमेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्लोजिंग इज लेस देन दी ओपनिंग। इंप्लीकेशन क्या है, ओवरऑल बिल्डअप पॉजिटिव है बिकॉज ट्रेंड इज अप, ट्रेंड अप है और प्राइस भी अप है, बट वॉल्यूम घट गया है, इंट्राडे में नेगेटिव मूवमेंट है, मतलब क्या, मार्केट गैप अप से खुल गया और इंट्राडे में नीचे आ गया, इसका मतलब ये हो गया। तो उस टाइम पे मतलब अपन बोलेंगे द स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। देन ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग, प्राइस इज फ्लैट, ट्रेंड इज अप, वॉल्यूम्स आर डिक्रीजिंग। तीसरी लाइन में इंडिसाइजिस में बताया, जैसे कि ओपन 100 रुपीज है, प्राइस 105 है, लो बन गया 98 रुपीज, क्लोजिंग 100 रुपीज के आसपास है, तो इट इज अ इंडिसाइज, मतलब मंदी और मंदी दोनों हो गया सेम डे में, लेकिन ओपनिंग के टाइम, ओपनिंग के आजू बाजू में क्लोजिंग है, तो मार्केट इंट्राडे में आज इंडिसाइजिव था, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं था मार्केट में, तो इंडिसाइजिव हो गया। मार्केट इंडिसाइजिव मतलब इन डायरेक्शन आज के दिन में वन साइड नहीं था अप, वन साइड डाउन भी नहीं था,
जिधर खुला उधर ही बंद हो गया, ऊपर नीचे हुआ दिन भर में, तो उसको इंडिसाइसिव बोलते हैं या डोजी बोलते हैं। तो ओवरऑल क्या है इंप्लीकेशन? ओवरऑल पॉजिटिव बिकॉज द ट्रेंड इज अप एंड वॉल्यूम ट्रेंड इज अप बेसिकली, बट ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग एंड प्राइस इज फ्लैट, मतलब प्राइस मोरलेस कल का प्राइस आज का प्राइस मोरलेस सेम है और सब। तो बेसिकली अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन अगर अप ट्रेंड है और प्रॉफिटिंग हो रहा है। दूसरा मतलब ये भी होता है कि साइडवेज मूवमेंट हो गया। तीसरा मतलब ये है पार्शियल शॉर्ट क्रिएट हो गए। पार्शियल शॉर्ट क्योंकि इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि क्या बढ़ गया है, लेकिन 100 रुपए का प्राइस आज भी 90 हो गया, ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया। जब नीचे हो गया तभी लोगों ने शॉर्ट मारा, पोजीशन शॉर्ट का ऐड हो गया, लेकिन मार्केट 105 हो गया तो पोजीशन लॉन्ग का भी ऐड हो गया, लेकिन शाम को बंद हो गया मार्केट 100 रुपए के आसपास। तो क्या होगा, दोनों का लॉन्ग भी ऐड हो गया, शॉर्ट भी ऐड हो गया, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल नोबडी हैज फॉर द डे, बुल और बेयर दोनों में झगड़ा हो गया और ओपन के आसपास ही बंद आ गया। तो इट इज दोनों पार्शियल शॉर्ट्स भी आ गया क्योंकि 105 से नीचे भी आया है, तो भाव किसी ने शॉर्ट भी मारा है, तो दोनों उसका ये होता है। बट ओवरऑल इंप्लीकेशन इज प्रॉफिट बुकिंग। ओपन इंटरेस्ट फिर फोर्थ कॉलम में है राइजिंग ट्रेंड, प्राइस नाउ प्राइस इज डाउन, प्राइस घट गया लेकिन ट्रेंड भी डाउन हो गया और वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कैंडल नेगेटिव, दिस इज बेरिश, यहाँ पे शॉर्ट के लिए जाना है, सेल करना है। तो ये जो बाय का कंप्लीटली अपोजिट है। अभी ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग, अभी ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग जनरली कभी होता है जब 15 तारीख के बाद में आफ्टर मिड मंथ ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन स्लोली स्लोली स्लोली। ओवरऑल जो हाई बनता है ओपन इंटरेस्ट का, वो हाई का हाईएस्ट रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्रॉस होता नहीं है और धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन। सो ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग एंड प्राइस मूविंग अप, प्राइस बढ़ गया है लेकिन ओपन इंटरेस्ट के साथ में नहीं बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब इंट्राडे में किसी के शॉर्ट है वो कट रहा है, वो प्राइस अप कर रहा है। ट्रेंड डाउन है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन हो गया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, कैंडल पॉजिटिव मूवमेंट है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ट्रेड लॉन्ग अभी जो कर रहा है उसके लिए ठीक है, ट्रेड लॉन्ग करो, एक क्विक एंट्री और एग्जिट मारो, बट ओवरऑल अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन जा रहा है। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, जैसे अभी मार्केट 5400 के बाद में ऊपर आया, तो इट इज मोर अ शॉर्ट कवरिंग राइज रादर देन अ न्यू पोजीशन इन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वहां पे क्या होता है, ऐड हो जाता है, बिकॉज सितंबर इज बिकमिंग एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो वही टाइम पे सितंबर में पोजीशन लॉन्ग का ऐड हुआ, बिकॉज फ्रॉम लो पे से मार्केट ऊपर आया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया इन सितंबर एंड वॉल्यूम भी बढ़ गया इन सितंबर। इन सितंबर में लॉन्ग पोजीशन ओवरऑल ऐड हो गया। अगस्त जैसे एक्सपायर हो रहा था, अनवाइंडिंग हो रहा था, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ रहा था, पोजीशन शिफ्टिंग हो रहा था। फॉलिंग, ओपन इंटरेस्ट इज फॉलिंग, प्राइस इज अप, ट्रेंड इज अप, अगला लाइन में वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कैंडल मूवमेंट इज पॉजिटिव, शॉर्ट कवरिंग और बाय। जैसे हमको लग रहा है कि कोई सपोर्ट से बाइंग आ गया, जैसे मार्केट का निफ्टी का उस दिन लो बनाया 5400 के आसपास, उधर लगा कि हमको बाइंग आ गया, बाइंग आया और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस भी ऊपर बढ़ गया, शॉर्ट कवरिंग भी गया, तो वो हम शॉर्ट कवरिंग का एडवांटेज ले सकते हैं बाय के लिए। तो नेक्स्ट लाइन में जो मैं इधर लिख रहा है, माउस मेरा जो है उधर, वो बाय का है। फिर नेक्स्ट लाइन में फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट, प्राइस ट्रेंड इज डाउन, डिक्रीजिंग, इंडिसाइसिव कैंडल, पोजीशन अनवाइंडिंग, एग्जिट ऑल पोजीशन। मतलब जैसे कि सेकंड लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी में रहता है, जब भी पोजीशन सिर्फ ओपन इंटरेस्ट अंदर रहता है और वहां पे सब प्राइस भी नीचे जा रहा है, ट्रेंड भी डाउन है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो वो क्या होता है, पोजीशन शिफ्टिंग होता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो इन स्टार्ट हो जाता है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, एग्जिस्टिंग पोजीशन ये होता है, तो सब पोजीशन एग्जिट होता है, एग्जिट ऑल पोजीशन, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट वाले भी पोजीशन काट रहे और जिसका लॉन्ग फंस गया वो भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बंद हो रहा है, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग एग्जिट ऑल लॉन्ग पोजीशन, ये जो सेकंड लास्ट लाइन है जहां पे माउस मेरा है, सेकंड लास्ट लाइन में, वहां पे
पोजीशन अनवाइंडिंग का दिखने मिल रहा है। और लास्ट है वो फॉलिंग डाउन नेगेटिव कैंडल पोजीशन अनवाइंडिंग। जैसे कि आप अगर देखोगे एग्जांपल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का चार्ट में, अगर आप देखोगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मार्केट टूट रहा था, ओपन इंटरेस्ट भी पहले बढ़ गया, फिर बाद में ओपन इंटरेस्ट गया, लेकिन तो भी वो जोर से टूट रहा था क्योंकि इट इज अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशन एंड सेल शॉर्ट। मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट मार रहा है ऊपर से उसको काटने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस और जोर से घट रहा है, तो नया शॉर्ट मार रहा है उसको भी काटने को मिल रहा है। Every fall new position are added and new positions are squared off also. Position are getting squared off because they are all getting chance to cover short position. जैसे abnormal fall आता है वो टाइम पे पोजीशन अनवाइंडिंग भी रहता है। जैसे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट घट रहा है जोर से और ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग भी हो रहा है, लेकिन भाव तो घट रहा है, भाव घट रहा है बिकॉज बाय का जिसका पोजीशन है वो फेंक रहा है, लेकिन बाय का पोजीशन फेंक रहा है इसके लिए अनवाइंड हो रहा है पोजीशन। लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट मारना है नया तो मैं मार सकता हूं क्योंकि मेरे को तो मेरी पोजीशन तो नया एडिशन ऑफ शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन उसमें फोर्स ज्यादा मिलता है नीचे में और जिसकी पोजीशन कंटिन्यू कट करना पड़ता है ट्रेडिंग के तौर पर, लेकिन वहां पे प्रॉफिट अच्छा मिलता है कभी कभी, तो सेल शॉर्ट। तो ये जो सर्टन 7-8 बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे एक्सेल शीट को यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। देन कम्स द लेवल, जो इसे बताया मैंने, लेवल बाद में आता है। एक बार स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद में लेवल पे कौन सा लेवल पे काम कर रहा है, क्या हुआ, पिवट लेवल क्या था, फिर उसके ऊपर बेस के ऊपर बाय सेल लेवल करना है, प्रॉफिट बुकिंग लेवल ऑन डे टू डे बेसिस। लेवल सबसे जरूरत है। अगर तो मैं बुलिश ट्रेड के लिए कर रहा हूं तो मुझे क्या देखना है, पहले मुझे ये देखना है इन लॉन्ग ट्रेड, बुलिश ट्रेड में अप ट्रेंड वाला स्टॉक्स पहले सिलेक्ट करना है, मुझे जिसका हाईएस्ट रहता है वो सिलेक्ट करना है, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है वो करना है, जिसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया वो सिलेक्ट करना है, जिसका कैंडल पॉजिटिव है वो सिलेक्ट करना है, जिसमें कैंडल मूवमेंट मतलब क्लोजिंग इज ग्रेटर देन द ओपनिंग वो सिलेक्ट करना है। ये मेरा बेसिक क्राइटेरिया है टू सिलेक्ट अगर अप ट्रेंड स्टॉक्स मेरे को चाहिए। तो सिमिलरली डाउन के लिए मुझे क्या करना है, बेरिश स्ट्रेटेजी के लिए मुझे ये करना है कि शॉर्ट पोजीशन तो उसका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड इज डाउन, ट्रेड विद द लोएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ, शॉर्ट ट्रेड के लिए वॉल्यूम हैज टू बी इंक्रीजिंग, ओपन इंटरेस्ट हैज टू बी इंक्रीजिंग, कैंडल मूवमेंट हैज टू बी इंक्रीजिंग। ये बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर मेरे को फ्रेश लॉन्ग और फ्रेश शॉर्ट करना है तो। अभी हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर जाते हैं जहां पे हमें तो एक्चुअल काम करना है। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं ऊपर की। ये एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट है जहां पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम सिक्योरिटी नेम, यानी कि जो भी फ्यूचर का नाम होगा, डिस्कनेक्ट बोलेगा। हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ। आपको कुछ निकालना नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाना है ना, वो 7 दिन का रहता है, 7 दिन का रहता है। हाँ 7 दिन का। हाँ मतलब अभी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप देखो, मैं पूरा हुआ नहीं है मेरा, अभी एक्सेल शीट में एक्चुअल दिखा रहा हूँ आपको कर।
वो कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा वो सब करने के लिए, वो उसमें मैं जस्ट बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ। तो उसका एक फॉर्मूला है, आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि क्या करना है इसमें। और ये जो एक्सेल शीट में जो मेन अभी मैं बता रहा हूँ, आप एनालिसिस नहीं करना है। ये जो एक्सेल शीट में अभी मेन चीज है वो एक्सेल शीट है। अभी एक्सेल शीट का मतलब क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो इसके लिए ओरिएंटेशन किया है, और अभी जो एक्सेल शीट में उसमें काम करना है, आप उसमें क्या करना है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी जो किया है वो कुछ वो सब एक बैकग्राउंड के लिए है आपका माइंड है। अदरवाइज ये मैं डायरेक्ट एक्सेल शीट दिखाया ना तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अभी मैं बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, तभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी एक दिन में यार एक सेशन में नहीं पता चलेगा पहले। और इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, और इसका रिकॉर्डिंग है आपको वापिस आपको सुनने को भी मिलेगा। ठीक है, ओके। अभी आपको आवाज आ रही है ना मेरी उधर? अरे यार, हेलो हेलो, या तो नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सेल शीट, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला है वो एक्सेल शीट में दिख रहा है, वो सिक्योरिटी नेम है, यानी कि निफ्टी ये सब के फ्यूचर के नाम है। ओके, नेक्स्ट कॉलम जो है कॉलम बी में वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, जो लास्ट कल का क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा। जैसे अभी ये फ्राइडे का क्लोजिंग है, ये मंडे, ये जो शीट है वो मंडे के लिए है। और ये जो शीट है आपके जो अकाउंट है हमारे वेबसाइट के ऊपर, उसमें ये डाला जाएगा। आपको लॉगिन करके हर दिन को ये एक्सेल शीट डाउनलोड करना है। बेकार नहीं, हेलो, हाँ। अभी ये एक्सेल शीट आपको अभी आएगी, थोड़ा टाइम पे देखने में आ गई तो मुझे जस्ट यस करके उधर टाइप कर देना, दिख गया तो। अगर आपको एक्सेल शीट दिख गई तो मुझे यस करके टाइप करके भेज देना। ओके, ठीक है। नाउ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी एक्सेल शीट के लिए। पहले ऊपर सिक्योरिटी नेम है, कि फ्यूचर इसका जो नाम है। फिर लास्ट क्लोज प्राइस है, जो पिछला दिन का क्लोजिंग रहेगा वो लास्ट क्लोज है। फिर ये रिवर्सल है, टी रिवर्सल, डीआरवी, ये हमारी मूविंग एवरेज है। जो मूविंग अगर ऊपर है तो ट्रेंड अप है, मूविंग एवरेज की वैल्यू है। जैसे अगर हम लोग निफ्टी की तरफ देखेंगे तो निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग है फ्राइडे का 5456, और जो मूविंग एवरेज की वैल्यू है वो 5385 है। तो ट्रेंड क्या हो गया? अप आ गया, बिकॉज मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड अप आ गया, ट्रेंड अप है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन है वॉल्यूम का। अभी कल का निफ्टी का वॉल्यूम कितना था? ये जो 4 लाख जो भी है 477,390 निफ्टी का वॉल्यूम है। ओके, अभी ये निफ्टी का वॉल्यूम है, और कल के मुकाबले में यानी कि फ्राइडे एंड थर्सडे, फ्राइडे का वॉल्यूम है कंपेयर टू थर्सडे थोड़ा डिप हो गया है। तो परसेंटेज वी मतलब क्या हो गया कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज द वॉल्यूम हैज ड्रॉप्ड अ बिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन निफ्टी। ओके, वो गेन और लॉस है। गेन और लॉस मतलब क्या है कि फ्राइडे को निफ्टी के मुकाबले में बढ़ गया का घट गया। गेन और लॉस, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन फ्राइडे क्लोजिंग ओवर थर्सडे क्लोजिंग। सो गेन और लॉस, तो निफ्टी हैज मूव बाय 0.7385%, 0.5% बढ़ गया हम निफ्टी ऑन फ्राइडे अगेंस्ट थर्सडे। ओके, तो गेन और लॉस इज देयर। जो हमने जो पहले का जो एक्सेल शीट में ओपन इंटरेस्ट में किया ना, कि ट्रेंड अप है, ओपन इंटरेस्ट अप है, प्राइस अप है। तो प्राइस अप मतलब क्या? गेन फ्राइडे ओवर थर्सडे, प्राइस अप क्या है? फ्राइडे ओवर थर्सडे, इंक्रीज और डिक्रीज, गेन और लॉस ओवर थर्सडे। The previous intraday movement, what is previous intraday movement? कैंडल मूवमेंट। कैंडल मूवमेंट जो हमने थोड़ा टाइम पहले वो शीट में देखा। कैंडल मूवमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव और कैंडल। पॉजिटिव कैंडल मतलब क्या? क्लोजिंग इज ग्रेटर
than the beginning. अगर पॉजिटिव कैंडल इज इक्वल पीसी, पीसी मीन्स पॉजिटिव कैंडल, जहां पे मेरा कर्सर है अभी पीसी, एंड पॉजिटिव कैंडल मीन्स क्लोजिंग इज ग्रेटर देन दी ओपनिंग. नेगेटिव कैंडल मीन्स क्लोजिंग इज लेस देन दी ओपनिंग. ओपनिंग क्लोजिंग क्या भाव है, ओपन से नीचे है. पॉजिटिव कैंडल इज इक्वल टू 1 नंबर, पॉजिटिव कैंडल इज इक्वल टू 1 नंबर, नेगेटिव कैंडल इज इक्वल टू 0 नंबर, positive candle is equal to 1 number. So Nifty had 1 number, positive candle, closing was greater than the opening. That is why it is 1 number. Negative candle means 0 number, but Nifty yesterday was 1 number. That means positive candle. Open interest. फ्राइडे का ओपन इंटरेस्ट कितना था निफ्टी में, 1 लाख जो भी है, 17 लाख 31,000, 31 लाख 17 करोड़ वट एवर जो है 1731. फ्राइडे को ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का क्या था इन कंपेयर टू थर्सडे? ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज ओआई, परसेंटेज ओआई मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे. फ्राइडे को ओपन इंटरेस्ट 15% से बढ़ गया ऑन थर्सडे. ओके, ब्रॉडली ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया. सो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया क्या घट गया? नेक्स्ट इज सिग्नल. सिग्नल में फ्रेश बी और एस. फ्रेश बी मीन्स फ्रेश बाय सिग्नल, फ्रेश एस मीन्स फ्रेश सेल सिग्नल. फ्रेश बाय सिग्नल इज इक्वल टू 1. मतलब क्या हो गया? फ्रेश बाय सिग्नल मीन्स बाय सिग्नल मीन्स 1 नंबर, फ्रेश सेल सिग्नल मीन्स 0 नंबर. ओके, तो फ्रेश बाय सिग्नल जो आता है, मतलब क्या होता है कि अगर मूविंग एवरेज जो है अपना, जो डीआरवी है, डेली रिवर्सल और लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, अगर अभी हमारा ट्रेंड अप दिखा रहा है, डीआरवी में क्लोजिंग में अप दिखा रहा है अभी, और डीआरवी इज 5385, निफ्टी 1 मंथ में, 1 मंथ मीन्स करंट मंथ, सेकेंड मंथ मीन्स नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ मीन्स करंट मंथ. तो निफ्टी, हेलो, हाँ, कि वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम है.